नमस्ते दोस्तों। आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट पार्ट, पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। 12th क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, देन limit of new function with a small increment in x, f of x plus delta x, minus original function f of x upon change in independent variable, that is delta x का limit delta x tends to 0. It is same as change in dependent function or dependent variable, that is delta y upon delta x का limit delta x tends to 0. If this limit exists, then it is called derivative of function f of x, or we can say the derivative of y with respect to x, and it is written as dy by dx or ddx of f of x, or f dash x or y dash. Here dash represent derivative with respect to x. Thus we can write dy by dx is limit change in dependent variable upon change in independent variable, when independent variable का जो change है tends to 0, which is same as limit of new function f of x plus delta x minus original function f of x upon change in independent variable delta x. This is called first principle of derivative. Now we consider partial derivatives. When our function depends on more than one variable, say z is function of x and y. Here z depends on x and y, where x and y are independent variable. So we can consider two cases here. We can fix y and allow changes in x. Similarly, we can fix x and allow changes in y. So if we fix y and take change in x, then the new function will be f of x plus delta x, y remain as it is, minus original function f of xy upon change in delta x, change in x, that is delta x, when limit delta x tends to 0. It is same as limit, यहाँ limit होनी चाहिए, limit of delta z upon delta x. See the notations, different notations. This is change in x, और ये जो है ये लिखा जाएगा डेल्टा z का लिमिट. इफ exists, then it is denoted by del z by del x. Now this notation of partial del is different from incremental notation delta. जब इस तरह के नोटेशन हम देखते हैं तो इससे समझ में आता है कि z depends on one variable x, there may exist another variables, therefore this notation is used. It is the notation for partial derivative del z by del x, and is called partial derivative of z with respect to x, keeping y fixed. Similarly, we can define partial derivative of z with respect to y, written as del z by del y. It will be equal to limit of delta z, means change in z, upon delta y, means change in y, limit delta y tends to 0. Now what will be delta z? तो it will be f of x को फिक्स किया है, y को चेंज कर रहे हैं, y plus delta y माइनस ओरिजिनल फंक्शन f of x y अपॉन डेल्टा y. x फिक्स किया है, तो therefore this is partial derivative of z with respect to y, keeping x fixed. अब ये जो रिजल्ट्स है हमारे पास del z by del x और del z by del y, इनके लिए अलग नोटेशंस ये भी यूज किए जाते हैं कई बार. z suffix x to denote partial derivative of z with respect to x, and z suffix y, that means partial derivative of z with respect to y. Now these are first order partial derivatives.
which are again functions of x and y. So it can be further differentiated with respect to x as well as with respect to y. So it gives further higher order partial derivatives. Say del x of del z by del x and del y of del z by del x. तो इसके हमने पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिया. सिमिलरली del z by del x के भी पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y हो सकते हैं. तो उनको लिख दिया del x ऑफ del z by del y and del y of del z by del y. Now this is written as del 2z by del x स्क्वायर, जैसा हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में करते थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के नोटेशंस. सिमिलरली del 2z by del x स्क्वायर. अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. पहले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिया गया है, उसको फिर y से डिफरेंशिएट किया है पार्शियली, तो इसको लिखा जाता है del 2z by del y del x. हियर ऑल्सो z का पहले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है और फिर उसको x से डिफरेंशिएट किया, तो इट इज रिटन एज del 2z by del x del y. पहले y से किया हुआ डेरिवेटिव और फिर x से किया है. जब ये दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो ये कहलाते हैं मिक्स्ड सेकेंड और पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड बाय रिजल्ट दे आर इक्वल, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन पुट किया. प्रोवाइडेड आवर फंक्शन z इज कंटिन्यूअस. जनरली हम जो फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं those functions are continuous in their domain. Now notation for this quantity del y of del z by del y is written as del 2z by del y square. So this gives second order partial derivatives. Further this can be differentiated with respect to x and y, gives higher order partial derivatives. Another notations for these are z suffix xx. दिस इज z सफिक्स, पहले x से डिफरेंशिएशन है और फिर y से, तो z सफिक्स xy. यहाँ पर पहले y से डिफरेंशिएशन था, तो z सफिक्स y और फिर x, एंड दिस इज zy. ओके, सो दीज आर द नोटेशंस. नाउ वी प्रूव रिजल्ट्स बेस्ड ऑन आयलर्स थ्योरम. तो first we recall Euler's theorem on homogeneous function. Yes, if the statement for this is if z is equal to function of xy is a homogeneous function of degree n in x and y, then x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz. This is Euler's theorem on homogeneous function. If z is function of xy is a homogeneous function of degree n in x and y, then x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz. Now with this we prove a corollary. If z is equal to function of xy is a homogeneous function of degree n in x and y, then prove that x square del 2z by del x square plus 2xy del 2z by del x del y plus y square del 2z by del y square is equal to n into n minus 1 into z. ये रिजल्ट हमको प्रूव करना है. तो वी आर गिवन दैट z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y. So we can use Euler's theorem on homogeneous function. It gives x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz. इसको नंबर कह दिया 2 और ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको नंबर का है 1. अब हमारे रिजल्ट में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लगने वाले हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ x है और ये del z by del x ये भी x का फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट टर्म में. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये टर्म्स लिखी. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x गिव्स del 2z by del x square plus second term del z by del x as it is into derivative of x with respect to x is 1 plus. अब यहाँ देखिए ये y है और ये del z by del y है, तो y और x तो इंडिपेंडेंट है,
तो x से डिफ्रेंशिएट करते समय y कांस्टेंट जैसा काम करेगा, तो y को एज इट इज़ रख दिया और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लिए, तो वो बन गया del 2z बाय del x del y इज इक्वल टू n कांस्टेंट है, z था राइट हैंड साइड में, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड ऑल दिस आर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब रिक्वायरमेंट है हमारी del 2z बाय del x स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर del 2z बाय del x स्क्वायर के साथ x तो दिख रहा है, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, सब जगह x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर xy हो गया, यहाँ nx हो गया, राइट। चलिए ये टर्म जो हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट की टर्म है वो मिल गई। अब यहाँ del 2z बाय del y स्क्वायर भी अपीयर हो रहा है, तो मतलब z के भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू y। तो फिर से हम इस रिलेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, अगेन डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब उस केस में ये x कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बन गया del 2z बाय del y del x, ये लिखा। अब ये y की टर्म है और ये del z बाय del y में y इन्वॉल्व है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 इज इक्वल टू n, z का डेरिवेटिव y से पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा। नाउ y के साथ del 2z बाय del y स्क्वायर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से y स्क्वायर होना चाहिए था, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, सब जगह y से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, ये लिखा गया। इसको नंबर दे दिया 4 और ये ऊपर लिखा था उसको नंबर दिया 3। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, नंबर 3 और नंबर 4 को ऐड कर देते हैं। ऐड करते समय देखो ये एक सिंगल टर्म है x स्क्वायर del 2z बाय del x स्क्वायर, राइट। फिर ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म है एक्स वाई del 2z बाय del x del y, और यहाँ पर भी मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म है, और हमको पता है मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होते हैं, तो ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स एक्स वाई del 2z बाय del x del y। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म ये है वाई स्क्वायर del 2z बाय del y स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जो बची फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म उनको कलेक्ट कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, तो यहाँ है x del z बाय del x और यहाँ पर है y del z बाय del y, इनको ये ब्रैकेट में लिख दिया। इक्वल टू राइट हैंड साइड में n कॉमन दिख रहा है और ब्रैकेट में रह गया x del z बाय del x प्लस y del z बाय del y। हमने रीजन दिया यहाँ पर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, इसी वजह से हम ये दोनों टर्म को, ये टर्म और ये टर्म, इनको ऐड कर सकें, ये 2 टाइम्स एक्स वाई। चलिए इतनी टर्म रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इतनी टर्म रहने देते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है nz, तो यहाँ पर nz, यहाँ पर nz, तो n टाइम्स nz, और ये जो nz है इसको उधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके यहाँ ला लिया माइनस nz, ओके। फिर ये बन गया n स्क्वायर z माइनस nz, तो उसमें से n कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह गया n माइनस 1, z भी कॉमन ले लेते हैं, तो यही तो हमको चाहिए था राइट हैंड साइड में, n इंटू n माइनस 1 इंटू z। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ कोरोलरी। नाउ वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स यूजिंग corollary and Euler's theorem on homogeneous function. So let us consider u equal to log of x square plus y square upon x plus y. Show that x del u by del x plus y del u by del y equal to 1. अब जब कभी इस तरह का रिलेशन दिखता हो तो हम कोशिश करेंगे कि हम आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन यूज़ करें। अब होमोजेनियस फंक्शन को यदि वेरीफाई करना है तो ये टर्म की डिग्री 2 दिख रही, ये टर्म्स की डिग्री 2 दिख रही है, ये टर्म की डिग्री 1 दिख रही है, तो 2/1, तो ये रह गया 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, t पावर 2 अपॉन t पावर 1, तो दैट विल बी t। लेकिन लॉग के अंदर है, तो ये अभी इस फॉर्म में तो होमोजेनियस फंक्शन होने वाला नहीं है जब तक ये लॉग यहाँ से हटेगा नहीं, तो उसको हटाया जा सकता है, लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना देंगे। लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना दिया तो ये बन जाएगा e पावर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एंड दैट विल बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो फिर e पावर u विल बिकम अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, तो उसके लिए आइलर्स रिजल्ट लग जाएगा x del del x ऑफ e पावर u प्लस y del del y ऑफ e पावर u
इज इक्वल टू 1 इंटू ई पावर यू। अब जब डेल डेल एक्स ऑफ ई पावर यू की जब बात करेंगे तो कंपोजिट डेरिवेटिव से ई पावर यू डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ पर डेल डेल वाई ऑफ ई पावर यू की जब बात होगी तो ई पावर यू डेल यू बाय डेल वाई। तो हर जगह ई पावर यू कॉमन दिखेगा, ई पावर यू से डिवाइड कर दिया, वी विल गेट दिस रिजल्ट। सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल। सम मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस वाई पावर 1/2 होल पावर हाफ, देन शो दैट ये कोरोलरी वाला जो पार्ट है रिजल्ट एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10u अपॉन 144 ब्रैकेट में 13 प्लस 10 स्क्वायर यू। तो एकदम से ये रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, पहले इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन है वो तैयार करेंगे और उसकी हेल्प से ये रिलेशन डिराइव करेंगे। तो वी रिकॉल if z is function of xy is homogeneous function of degree n in x and y, then x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz and x square del 2z by del x square plus 2xy del 2z by del x del y plus y square del 2z by del y square is equal to n into n minus 1 into z. तो consider this function given that u is equal to sin inverse of, ये अंडर रूट है पूरे एक्सप्रेशन का, अंडर रूट में लिख दिया जो भी फंक्शन है। अब साइन इनवर्स के अंदर फंक्शन होने की वजह से ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं बन सकता, तो साइन इनवर्स को यहाँ से हटाने की कोशिश करते तो ये इधर होके हो जाएगा साइन यू। यस, दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन बट साइन यू इज अंडर रूट ऑफ एक्स पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 अपॉन एक्स पावर हाफ प्लस वाई पावर हाफ। ये जो दिख रहा है अंडर रूट में, इसको यदि हम z डिनोट कर दें से, तो देखते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन होता है क्या। वेयर z इज इक्वल टू लिखा सेम, x का पावर जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको कॉमन लेते हैं, तो x पावर 1/3 कॉमन हो गया, यहाँ रह गया 1 प्लस वाई पावर 1/3 अपॉन एक्स पावर 1/3। डिनोमिनेटर में x पावर हाफ कॉमन लेते, 1 प्लस वाई पावर हाफ अपॉन एक्स पावर हाफ। ये x के पावर कलेक्ट कर लिया ऊपर ले जाके, 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम 6, 2 माइनस 3 यानी -1 बचेगा, और ये जो पूरी टर्म है इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स पावर -1/6 इंटू अंडर रूट ऑफ जो भी एक्सप्रेशन है वो। अब ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन y बाय एक्स के टर्म में दिख रहा है, तो इसको हमने रिप्लेस किया f ऑफ y बाय एक्स, और x पावर -1/6 का पावर 1/2, तो वो बन गया x पावर -1/12। तो बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन our z is in the form of x power n into f of y by x. So z become a homogeneous function of degree -1/12. What is z? Z is sin u. So z equal to sin u become homogeneous function of degree -1/12. Means here n is equal to -1/12. So we can write by Euler's theorem on homogeneous function, x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz. Okay. Now what is z? Sin u, sin u, sin u, सब जगह रख दिया। अब del del x of sin u, u was function of x, तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। चेन रूल लगा के sin u का डेरिवेटिव पहले u से, वो बना cos u इंटू डेल u बाय डेल एक्स। यहाँ प्लस y, sin u का डेरिवेटिव y से लेना है, cos u डेल u बाय डेल y इक्वल टू -1/12 साइन यू। यहाँ से cos u कॉमन लेके उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो साइन यू अपॉन cos u ये बन गया tan u। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में रिलेशन। कई बार इतना भी एक क्वेश्चन हो सकता है, शो दैट दिस रिजल्ट। नाउ वी वांट रिजल्ट इन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो जो हमने थ्योरम में प्रूव किया था वही प्रोसेस से इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तैयार करते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस रिलेशन नंबर 2 दिया है, पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ को प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस वाई एक्स के लिए कांस्टेंट जैसा काम करेगा, del 2y बाय del 2u बाय del x del y इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है x से,
लेकिन पहले u से डिफ्रेंशिएट होगा तो tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u माइनस 1/12 है साथ में इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, फिर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ xy हो जाएगा और यहाँ पर एक x आ गया, x डेल यू बाय डेल एक्स, इसको नंबर दिया 3। ओके, इसको हम रब करते हैं, ये पार्ट को रब करते हैं और आगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y नाउ, तो x कांस्टेंट होगा डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू y मीन्स डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव y से 1 इक्वल टू माइनस 1/12 कॉन्स्टेंट tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u डेल यू बाय डेल वाई। अब यहाँ वाई स्क्वायर मिलाने के लिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय वाई, तो y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट आ गया, इसको नंबर दिया नंबर 4। नाउ ऐड 3 and 4, ऐड 3 and 4, पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लिया, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड हो जाएंगी, 2xy डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, हो गया टर्म इतने। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, इसको ब्रैकेट में डाल के उधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो माइनस साइन लगा दिया, और पहले से यहाँ पर था एक्स डेल यू बाय डेल एक्स के साथ में माइनस 1/12 सेक स्क्वायर यू, और यहाँ पर था माइनस 1/12 सेक स्क्वायर यू वाई डेल यू बाय डेल वाई, तो माइनस 1/12 सेक स्क्वायर यू कॉमन, ब्रैकेट में रह गया एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। अब ये राइट हैंड साइड ही हमको सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, ये माइनस साइन दोनों में है, तो माइनस ये ब्रैकेट कॉमन, यहाँ रह गया 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/12 सेक स्क्वायर यू। नाउ दिस रिलेशन इज सेम एज माइनस 1/12, ये यहाँ पर था, दिस रिलेशन इज माइनस 1/12 tan u, ये ब्रैकेट की वैल्यू माइनस 1/12 tan u, और इसको 1 प्लस 1/12 इंटू सेक स्क्वायर यू एज इट इज रख दिया, कहाँ से यूज़ किया बाय 2, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 1/12 tan u। अब ये जो सेक स्क्वायर यू है इसको रिजल्ट लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर यू, ब्रैकेट ओपन कर दिए 1/12 इंटू 1 यानी 1/12 tan स्क्वायर यू, और इसके बाद यहाँ पर सॉल्व किया आगे, ये देखिए 1/12 tan u, 1 प्लस 1/12 बिकम्स 13/12 प्लस 1/12 tan स्क्वायर यू, तो ये हो गया tan, यहाँ से ये जो 12 डिनोमिनेटर का है ये कॉमन ले लेते बाहर, तो 12 पहले से है, 12 इंटू 12 144, tan u अपॉन 144 ब्रैकेट में रह गया 13 प्लस tan स्क्वायर यू, यही हमको चाहिए था। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if z is equal to x plus y into phi of y by x, then show that x del z by del x plus y del z by del y is equal to z। अब फिर से ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमको आइलर्स थ्योरम की याद दिलाता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन के लिए बाय डेफिनेशन अवर z शुड बी एक्सप्रेस्ड एज x पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x, तो ऑलरेडी फाई ऑफ y बाय x तो है y बाय x के फॉर्म में। अब रही बात x प्लस वाई की, तो एक्सक्यूज मी, तो वी कैन टेक x, दिस x कॉमन, यस दिस x कॉमन, रह गया यहाँ पर 1 प्लस y बाय x, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y बाय x, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y बाय x, तो ये दोनों को कंबाइन करके वी कैन राइट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y बाय x, और x का पावर रहा 1, therefore z is homogeneous function of degree 1 in x and y, hence by Euler's theorem on homogeneous function x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz, what is n, 1, तो 1z, that is z, यही हमको चाहिए था, तो this completes the solution। Now if sin v equal to x plus 2y plus 3z
अपॉन अंडर रूट ऑफ x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस z पावर 8. It is 8. So that x del v by del x plus y del v by del y plus z del v by del z plus 3 tan v इक्वल टू 0. तो वही पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर आयलर्स थ्योरम का. यहाँ 3 वेरिएबल हो गए, v डिपेंड्स ऑन 3 वेरिएबल्स, इसलिए एक टर्म और ऐड हो गई है. गिवन दैट साइन v इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन अंडर रूट ऑफ x पावर 8 प्लस y पावर 8 प्लस z पावर 8. से दिस फंक्शन एज u. तो चेक करते ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या. होमोजीनियस फंक्शन के लिए x पावर n इंटू एफ ऑफ y बाय एक्स के फॉर्म में चाहिए. सिंगल x और y वेरिएबल होते तो. अब यहाँ x y z 3 वेरिएबल है, तो जो हमारी टर्म्स होगी वो y बाय एक्स और z बाय एक्स के टर्म में होनी चाहिए. तो कंसिडर u. ऊपर से x कॉमन लिया तो यहाँ हो गया y बाय एक्स, यहाँ हो गया z बाय एक्स. यहाँ पर मैक्सिमम पावर है x पावर 8 कॉमन ले लिया, 1 प्लस y बाय ए एक्स पावर 8 z बाय एक्स पावर 8 हो जाएगा. ये टर्म को ये ब्रैकेट में लिखा है, ये टर्म को ये ब्रैकेट में लिखा है, ऊपर x है और ये अंडर रूट को अलग कर दिया, अंडर रूट x पावर 8 और ये अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट. तब यहाँ पर सब y बाय एक्स z बाय एक्स की टर्म है, यहाँ पर y बाय एक्स z बाय एक्स की टर्म है. तो ये जो दोनों ये जो दिख रहा है खाली, ये पूरे को हम f ऑफ y बाय एक्स कॉमा z बाय एक्स बोल सकते हैं. हमको देखना है x का पावर क्या है. तो ये हो गया x का पावर 8 रेस टू पावर 1/2, मतलब x का पावर 4. वो 4 को ऊपर लेकर गए, x पावर 1 माइनस 4 दैट इज x पावर माइनस 3. तो मीन्स अवर u is homogeneous function of degree minus 3 in x, y, z. So by Euler's theorem on homogeneous function, expression x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z is equal to nu. u is homogeneous function है. Now what is u? u is sin v. तो सब u की जगह sin v, sin v, sin v, sin v और n is -3. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. साइन v का डेरिवेटिव cos v del v by del x, यहाँ पर भी cos v del v by del y, cos v del v by del z इक्वल टू -3 sin v. cos v लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है, कॉमन लेके डिवाइड कर देते, तो sin v अपॉन cos v tan v बन गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स है x del v by del x प्लस y del v by del y प्लस z del v by del z इक्वल टू -3 tan v. उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, प्लस 3 tan v इक्वल टू 0. यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था. तो इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं बुक की हेल्प से. नाउ कंसिडर अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट काइंड. इफ z इज इक्वल टू x पावर m इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स प्लस x पावर n into g of x by y, then prove that this is the relation of that corollary plus m n z equal to m plus n minus 1 into x del z by del x plus y del z by del y. Okay, so given that z is x power m f of y by x plus x power n g of y by x. अब ये दो फंक्शन अलग अलग डिग्री के दिख रहे हैं. ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन दिख रहा है लेकिन यहाँ डिग्री m है, और ये होमोजीनियस फंक्शन दिख रहा है लेकिन डिग्री n है. तो इन दोनों को हम अलग अलग नोटेशन दे देते हैं. लेट u इक्वल टू x पावर m f ऑफ y बाई एक्स एंड v इज इक्वल टू x पावर n g ऑफ x बाई y. सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. अब दोनों होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पर रख दिया z बिकम्स u plus v. Now u is homogeneous function of degree m. Therefore by Euler's theorem on homogeneous function, x del u by del x plus y del u by del y is equal to mu. And by corollary, x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square is equal to m into m minus 1 into u. नंबर देते गए इनको लाइन से. ओके, फॉर v यस v इज इक्वल टू एक्स पावर n g ऑफ x बाय y. यदि इसको y बाय एक्स के फॉर्म में लिखना है तो रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका 1 अपॉन y बाय एक्स.
it gives v as homogeneous function of degree n in x and y. Therefore, by Euler's theorem on homogeneous function, x del v by del x plus y del v by del y is equal to nv, and by corollary, the expression in terms of v is equal to n minus 1 into v. इसको भी नंबर दे दिया. अब ये एक्सप्रेशन v सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला और ये रिलेशन दोनों को ऐड करते हैं. 3 और 5 को ऐड किया तो वी गेट एक्स स्क्वायर कॉमन del टू यू बाई del एक्स स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर v है यहाँ पर u है तो दोनों का एडिशन u प्लस वी प्लस 2xy del टू यू बाई del एक्स del y u प्लस वी प्लस वाई स्क्वायर, दोनों टर्म को मिलाया del टू बाई del y स्क्वायर ऑफ u प्लस वी इक्वल टू, यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड है m इंटू एम माइनस वन इंटू यू प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड है और सॉरी राइट हैंड साइड n इंटू एन माइनस वन इंटू वी. ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या कॉमन दिखता है देखो, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एम और यहाँ हो गया एन स्क्वायर माइनस एन, ये टर्म लिखिए एम स्क्वायर प्लस एम यू प्लस एम स्क्वायर माइनस एम यू प्लस एन स्क्वायर माइनस एन वी. और ये जो u प्लस वी है ये z था तो यहाँ z रिप्लेस कर दिया. ओके, इसको नंबर दिया a. राइट, अब वी हैव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ये पार्ट हुआ, इतना पार्ट हुआ. ये पार्ट को इवेल्युएट करते हैं. ये पार्ट m प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई, और ये जो टर्म है ना एम एन जेड, इसको उधर साइड ले जाकर तो माइनस एम एन जेड, ये कंसिडर करते, इसको सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है. यदि ये पार्ट इसके बराबर आ जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. दिस एम प्लस एन माइनस वन, दिस इज कहाँ प्रूव किया है इसको देखो, इट इज एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई. ये एम यू के टर्म में एम यू है, वी के टर्म में एम वी होगा तो दोनों का एडिशन एम यू प्लस एम वी. ओके, दोनों का एडिशन ये टर्म और ये टर्म जब ऐड होगा तो ये u प्लस वी, ये u प्लस वी, ये दोनों टर्म ऐड होंगी तो इसका राइट हैंड साइड है एम यू, इसका राइट हैंड साइड है एम वी, तो ये एम यू प्लस एम वी माइनस एम एन एंड z इज u प्लस वी. नाउ m प्लस n माइनस वन एज इट इज, एम यू प्लस एन वी एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस एम एन यू माइनस एम एन वी. फिर और ब्रैकेट ओपन करते ही m इंटू एम यू एन एम स्क्वायर यू एम एन वी, n के साथ मल्टीप्लाई किया तो एम एन यू एन स्क्वायर वी माइनस एम यू माइनस एन वी, और ये टर्म यहाँ थी पहले से माइनस एम एन यू माइनस एम एन वी. तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल. फिर u की दो टर्म हैं तो u की टर्म में से u कॉमन ले लिया तो एम स्क्वायर माइनस एम, और v की दो टर्म हैं v कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू वी, इसको दिया b. तो ये पार्ट b का और ये पार्ट a का, ये दोनों सेम दिख रहा है तो वी कैन कंक्लूड दैट सिंस राइट हैंड साइड्स आर इक्वल therefore left hand sides are equal. So from a and b we obtain x square del 2 z by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2 z by del y square is equal to ये पूरा m plus n minus 1 into bracket minus m n z. नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इधर ले आएंगे तो जो चाहिए था वो मिल जाएगा. तो दिस गिव्स डिजायर्ड रिजल्ट. तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं. तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स. अगले वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन एंड जैकोबियंस. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. जय गणित.